Okay, everybody is in. We can start. A very good morning, all of you. Nice to see you on this Sunday morning and on the day of love. Welcome from Sneak Rehab Foundation and welcome from Harshali Kharche. SNEAK is especially the Special Needs Integration Center. We are based in Nagpur. Our motto is to provide a conducive environment for children with special needs so as to facilitate their development, education, and help them to develop their fullest potential and enhance their independence so they should be well adaptive in individual in society. For that, we are going to introduce various centers under one roof, that is in Nagpur. We are based in Nagpur. Our motto is to educate the parent and develop their perspective toward the right kind of interventions and treatments. Now today, in this journey, we have Kriti Mitra Bhatia, founder of the Special Mom, with us to share her journey, parents' journey with us. Kriti is a mom who took the challenges of the special needs journey head along and set out to help all parents. My lovely friend and founder, awesome Auti Mom of the Special Mom community. The Special Mom works specifically to help all the women associated with special needs people. Kriti was awarded with Gurugram Achievers Award in 2019, and she also the recipient of the People TV's 40 over 40 award for her vision and work towards social development. I welcome her to the Sneak platform on the day of love and 14 Feb with lots of love and best wishes. So we will start with Kriti's introduction. Kriti, over to you. Thank you, Harshali. Introduction was pretty heartening. Yes, I am Kriti. I have two sons, Arnav and Abhinav. My elder one, Arnav, is 10 years old and he has autism. As Harshali already said, this journey began with, of course, the day the pahad of diagnosis, literally been perched on your head. And then you start grappling with the truth and the reality of it कि भाई ये autism किस चिड़िया का नाम है. And that's how this journey has begun, and that's what has full on start this platform called the Special Mom. बहुत नाम यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे जो ऑलरेडी स्पेशल मॉम के साथ जुड़े हुए हैं, एंड thanks to all of you. And so thanks again, Harshali, for inviting me here to share my journey and my story and my transition from a mom to the special mom. Yes, Kriti. I mean, what all you would like to tell about yourself? I mean, about your child, or how you, what age did you notice about his condition, and how you change? I mean, change in development, basically. I mean, from starting. So let's start from the time the Big Bang happened in our life. My son was 18 months old when he was diagnosed with PDD-NOS, pervasive development disorder, not otherwise specified. And his was a classic case of regressive autism, where we actually saw him losing his milestones. He, as per his age and as per the percentile graph that the pediatric world has, he has achieved all his milestones, blabbering, talking in one or two words, and playing, happy, imitating rhymes and songs, and trying to speak difficult words or imitate difficult words or imitate you. So as and when he was growing up, he was 14 or 15 or 16 months old, we actually saw all these important milestones diminishing in him. The first thing that diminished in him was his speech.
he just stopped talking one day, and we were not able to understand as to why this happened. And we of course got in touch with the pediatrics, and thankfully the pediatrician that we were consulting for our children has a fair amount of knowledge about developmental issues in children, and specifically autism. Though he never mentioned this word, but then he suggested us to get in touch with a child psychologist ASAP. We got in touch with a child psychologist. I hope everybody is okay with English, or else I would love to switch to my favorite Hindi. मुझे शब्द सोचने में समय लग जाता है इंग्लिश में. आई एम वेरी हैप्पी टू कन्वर्स इन हिंदी. प्लीज डू लेट मी नो. Anything, Kriti? Be comfortable. मुझे ऐसे लगता है हर्षाली, ऑल दीज सेशंस आर यू नो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक थैंक्स टू कोविड हमें वर्चुअल गप्पे सेशन के लिए वो, I know. so let's all these sessions be you know, ऐसे लगना चाहिए कि एक संडे सुबह सब लोग चाय लेके बैठे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं अपनी जिंदगी के बारे में, अपने सफर के बारे में. Yes. तो 18 महीने की उम्र थी अर्नव की, एंड उस टाइम पे वो डायग्नोस हुआ. ऑफ कोर्स जिंदगी पूरी पलट गई 360 डिग्री, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि ऑटिज्म है क्या चीज, ये पीडीडी नॉस क्या चीज होती है. And then as any of you who have when they have started journeys with a bundle of questions in their head, and more so importantly वो सवाल जो शायद आज भी कभी कभी आपको स्लीपलेस नाइट्स देता है, क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा. और उस समय आई गेव बर्थ टू आवर सेकेंड सन एज वेल. सो ये दो चीजें मेरी साइमल्टेनियसली हुई, अर्नव का ऑटिज्म डायग्नोसिस एंड मी बिकमिंग अ मदर फॉर द सेकेंड टाइम. मेरे दोनों बच्चों में 18 महीने का डिफरेंस है. सो जिंदगी के पहले के 4-5 साल काफी मुश्किल के गए हैं, जहाँ पे 3 साल तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं करूं क्या. मैं अपने जो बच्चा मेरा अभी पैदा हुआ है मैं उसका ध्यान रखूं, या अर्नव को मैं थेरेपीज के लिए ले जाऊं, इंटरवेंशंस कराऊं. क्योंकि तब हर माँ बाप की तरह हमारे दिमाग में भी ये चीज थी कि हमें ये बच्चा ठीक करना है. कुछ हो गया, कुछ बीमारी हो गई है उसको, हमें उसको निकालना है. और जिंदगी के वो 3-4 साल कैसे गए हैं, किस मुश्किलात से गए हैं, वो आज भी जब मुझे याद आता है तो इट जस्ट brings a lot of sadness तो नहीं बोलूंगी, पर हाँ अंदर से मुझे बहुत वीक कर देता है. और मुझे ऐसे लगता है, और कॉन्स्टेंटली उन्हीं मोमेंट्स को याद करती रहती हूँ और सोचती हूँ कि आज जब मैं ये सोच रही हूँ, वहां पे और 14-15 माँ बाप होंगे जिनके बच्चों के डायग्नोसिस हो रहे होंगे, मैं उनकी मैं कैसे मदद कर पाऊँ. तो मेरी जो वो उस समय की जो मेरी इमोशंस थे, उस समय का जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने उसी को अपना आज स्ट्रेंथ बना रखा है. और मैं बस यही सोचती रहती हूँ कि आज मैं यहाँ, आप लोग जैसे आज हम बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्रॉबेबली देयर आर 3-4 पेरेंट्स आउट देयर जिनके बच्चे डायग्नोस हो रहे हैं आज, जिनके बच्चों को डायग्नोसिस मिल रहा है आज. तो कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव यही करता रहता है मेरा दिल, मेरा दिमाग, कि मैं उस माँ बाप की मदद कैसे कर पाऊँ. Because I don't want them to go through the emotional mess that I have gone through when my child was diagnosed, and seeing our Indian family system and everything around us, किस तरह से societal pressures आते हैं हमारे ऊपर, किस तरह से एक माँ, स्पेशली एक माँ, वो सारा पेन अपने पे ले लेती है. और क्योंकि उसके दिमाग में सबसे पहला थॉट यही होता है, पक्का जो भी मेरे बच्चे के साथ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, मैंने प्रेगनेंसी के वक्त ये नहीं खाया था, मुझे उस बुआ जी ने बोला था कि इस भगवान की पूजा करना, या मुझे इन्होंने बोला था कि ये वाला पाठ पढ़ना, मैंने ये सब नहीं किया, इसीलिए आज मेरे बच्चे के साथ ये हुआ है. That phase in a mother's life brings a lot of self-pity, a lot of questioning about her own self-worth.
लो, वेरी वेरी लो सेल्फ एस्टीम, क्योंकि मैं खुद इस जर्नी से गई हूँ। मुझे पता है कि मेरी हालत क्या थी उन 4-5 सालों में, मुझे पता है मेरी हालत क्या थी। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि कोई भी माँ उस फेज से ना गुजरे। आज अगर हमारे बच्चे डायग्नोस हो रहे हैं तो हम सबको उस फेज से गुजरना है, पर हमेशा रो पिट के क्यों गुजरना है उस फेज से? उस फेज को अपनी ताकत बनाते हैं। अब तो हमारे पास, वी आर सो लकी, इफ यू सिट एंड टॉक टू पीपल जिनके बच्चे 20-20, 25-25 साल के हो गए, अगर हम उनकी कहानियां सुनेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरह उन्होंने लाइफ देखी थी, जिस तरह उन्होंने देखा था कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, सोसाइटी क्या कर रही है उनके साथ। भूल जाइए सोसाइटी, द मेडिकल फ्रेटर्निटी, how that medical fraternity has actually helped them not diagnose their children with autism or ADHD, but उनको पागल करार दे दिया गया था कि वो your MR. child is mentally retarded, oh your child has some mental issues, oh आपका बच्चा तो पागल है। आई थिंक उस 20-25 साल पहले की जो पेरेंटल जर्नी थी, आई थिंक आज हम बहुत बेटर हैं। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी की पावर है, तो उसको पॉजिटिवली यूज करते हैं, रीच आउट करते हैं जितने भी माँ बाप से मिल सके, स्पेशली माओ से। माई वीकनेस इज मदर्स, माई वीकनेस एंड माई स्ट्रेंथ इज मदर्स। मैं जितना भी उनके लिए कर पाऊं उतना कम है। एंड that was my motivation, that was the thought the special mom was born, क्योंकि मुझे माओ की मदद करनी थी। मुझे उनके और कोई मदद नहीं करनी थी, मुझे बस उनको ये फील कराना था कि जहां पे आज तुम हो, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट दैट यू कैन बी राइट नाउ। सो उसको अपना पावर बनाओ, उसको अपना विजन बनाओ, उसको अपना पर्पस बनाओ, उसको डिजेक्शन मत बनाओ। नॉट अ सिंगल पर्सन अंडर द सन राइट नाउ इज हैविंग इट ईजी। जस्ट बिकॉज तुम्हारे ऊपर एक डायग्नोसिस का पहाड़ है, दैट डजंट मीन लाइफ हैज टू स्टॉप। दैट डजंट मीन दैट आप अपना मदरहुड एंजॉय नहीं करेंगे। दैट डजंट मीन कि आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करेंगे। Harshali, that's about it for how I began. Yes. Actually, yes, true, कृति। तब हमारे पास मतलब पहले तो कुछ हेल्प भी नहीं थी। नाउ वी हैव दिस सपोर्ट ग्रुप्स एंड everyone around and everything. But for that time, I mean, what did you reach out for any, what all therapies, on how you gone about it, and what was your reaction and family and all, how you managed everything? I have been extremely fortunate when it comes to family. सपोर्ट सिस्टम काफ़ी हेल्प किया है मुझे। अगर फैमिली नहीं होती साथ में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती। प्रीटी फॉर्चुनेट, फैमिली में सपोर्ट था। एंड बहुत कन्फ्यूजन उनमें भी था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। बट वो 6-7 साल उन्होंने मुझे दिए बच्चे के साथ, मेरे अपने साथ, कि लेट देम फिगर आउट कि व्हाट इज बेस्ट फॉर देयर चाइल्ड। एंड धीरे धीरे वो भी सीखे, उन्होंने भी सीखने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी। थेरेपीज वही नॉर्मल थे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, वो टेबल टॉप एक्टिविटीज, वहीं से शुरू हुआ सब कुछ। एंड जो चीज़ जिसने मेरी पर्सनली बहुत मदद करी थी, एंड वो अभी मेरा ड्राइविंग फोर्स अभी तक है, वो है व्हेन आई स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद सीनियर पेरेंट्स। जब हम लोग थेरेपी सेंटर्स में जाते थे, वहाँ पे सीनियर पेरेंट्स मिलते थे। सो माय फर्स्ट इंटरैक्शन व्हेन आई रीच्ड आउट टू अ स्पेशल सीनियर पेरेंट वॉज, मैं ये नाम हर जगह लेती हूँ, मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी उनसे बात हुई आज से इतने सालों पहले। आप में से बहुत लोग उनको जानते भी हैं। उनका नाम है चारू शरण। उनका बेटा है सचिन नाम है उसका। चारू हैज जस्ट स्टार्टेड अ चॉकलेट मेकिंग इनिशिएटिव involving her child and other adults in spectrum.
चारू और हम लोग सेम सेंटर में जाते थे, और एक दिन मैं बहुत, मेरा मूड ऑफ था बिकॉज पहली बार मैंने अर्नव का मेल्टडाउन देखा था। उससे पहले हमें पता नहीं था कि व्हाट इज अ मेल्टडाउन, और मैं काफी डर गई थी, काफी वरिड थी, और मैं इमोशनली बहुत वीक थी, बहुत वीक थी उस समय। तो अर्नव को उस टाइम पे सेंटर लेके गए थे, चारू भी वहीं आती थी। तो चारू ने मुझे देखा चुपचाप बैठे हुए, एंड देन चारू को फील हो गया कि कुछ गड़बड़ हुई है आज इसके साथ। And she reached out to me. She said, "Hi, I'm Charu. Do let me know if I can help you with something." And it was almost like a God sent a moment. And मैं रोने लग गई और मैं बोलने लग गई। And चारू ने और कुछ नहीं किया, वो चुपचाप बैठ के सुनती रही मुझे। And that's when मेरे से बात करनी शुरू करी। She kept in touch with me. मेरा नंबर लिया उन्होंने, फोन करती रही मुझे, मेरे से बात करती रही। और मुझे तब फील हुआ कि कोई डॉक्टर नहीं, कोई थेरेपिस्ट नहीं, मुझे चारू से बात करके इतनी शांति पड़ रही है। नॉट बिकॉज व्हाट शी इज सजेस्टिंग मी, जस्ट विद द फैक्ट दैट आई एम नॉट अलोन। और वो चीज, उस चीज ने मुझे इतना पीस दिया, उस चीज ने मुझे इतना रेस्पाइट दिया कि मैं अकेले नहीं हूं। मेरी तरह बहुत सारी और माएं हैं who have gone through this, who are going through this. And then उसके बाद I got acquainted to नीना वाघ। उनके साथ बहुत बातें करी, उनके साथ लाइफ के पर्सपेक्टिव को सीखा, नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ चाइल्ड, नॉट फ्रॉम अ व्यू पॉइंट ऑफ अ मदर, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ वुमन। आप औरत हैं, आपके पास बहुत बड़ी पावर है, आप यू कैन रिक्रिएट लाइफ। वो जो उनसे जो धीरे धीरे अभी भी सीख रही हूं, मैं अभी भी सीख रही हूं, द पर्सपेक्टिव ऑफ अ वुमन एंड हाउ पावरफुल यू आर, because you have the power to recreate life, you have the power to give life। वो जो उनसे सीखा मैंने, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी। तो ये जो पूरा, जो हर्षाली, जो पूरा जो थॉट था ना कि थेरेपिस्ट ठीक है यार, अपनी जगह पर हैं, रेस्पेक्ट टू देम, उनके, उनकी वजह से हमारी गाड़ी चल रही है। लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस फैक्ट इन आवर लाइफ। अगर आप थेरेपिस्ट नहीं होते तो शायद हमारी गाड़ी नहीं चलती यार। हमें समझ में ही नहीं आ रहा होता कि बच्चे के साथ करना क्या है। थेरेपिस्ट, all our heartfelt gratitude to them। बट ये जो पेरेंट कम्युनिटी है और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, लाइव एक्सपीरियंसेस जो वो खुद जिए हैं और वो जी के बाहर निकले हैं उससे, वो जो एक रियलाइजेशन है, वो जो उनके साथ कनेक्ट होकर एक जो मन को शांति पड़ती है, आई थिंक उससे बड़ा कुछ पेरेंट फ्रेटर्निटी को, जिसको कहते हैं ना हर्षाली, देन नहीं है। हर्षाली, इफ यू रिमेम्बर द वे यू एंड मी कनेक्टेड, हम दोनों ने जब बात करनी शुरू करी, हमने भी अपने बच्चे के बारे में बात करी, सपोर्ट ग्रुप्स के बारे में बात किया। याद है तेरा और मेरा कॉन्वर्सेशन कुछ 1 साल पहले? बिल्कुल। कुछ करते हैं यार, चल कुछ हेल्प करते हैं, नागपुर के पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, कुछ करते हैं। सो द वे वी बोथ इवन कनेक्टेड, हम दोनों का भी पर्पस और हम दोनों का भी वो एकदम ऑलमोस्ट सेम हो गया। सेम मिशन, सेम विजन। मैं एक और चीज, दो इट्स नॉट अ वेरी गुड एन एक्सपीरियंस एंड एन एग्जाम्पल, बट ये चीज मैं थोड़ा यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि जिस दिन, जिसको कहते हैं ना ठान लेना कि बाकी माओ के लिए कुछ करना है, वो एक बहुत ही एक ब्रेकिंग पॉइंट था जिंदगी का मेरा, वो वाला मोमेंट। मैं उसके बारे में थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। पीपल हु आर वेरी क्लोज टू मी, इवन यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ इट व्हेन वी हैड आवर कॉन्वर्सेशन अ ईयर बैक। एक टाइम आया जब लाइफ ना बहुत पर्पसलेस लग रही थी। ऐसे लग रहा था सुबह उठती हूँ, बच्चे की पॉटी साफ करती हूँ, बच्चे को नहलाती हूँ, तैयार करती हूँ, सेंटर भेजती हूँ, खाना बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया, खाया। उनका लाइफ पर्पसलेस सी लग रही थी। मैंने कहा व्हाट एल्स कैन वन डू। उसी मोमेंट पे बहुत एक दिल दहलाने वाला न्यूज आया। There was a mom in Bangalore who committed suicide after feeding poison to her own 14-year-old autistic son. And then she committed suicide herself.
उस मोमेंट ने हिला दिया यार मुझे, I know. क्योंकि I never wanted to question that mom's intent. I never wanted to question that mom. बिकॉज मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा था कि उसका वो ब्रेकिंग पॉइंट क्या था जहाँ पे उसने डिसाइड किया कि मैं इस बच्चे को मार देती हूँ और मैं फिर खुद मर जाती हूँ। बिल्कुल समझ रही थी, पर द एंटायर उसमें पूरा अनॉयंस मेरा वो था कि आज की डेट में जहाँ पे फेसबुक, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स इतने पावरफुल हैं, व्हाई डिडंट शी रीच आउट फॉर हेल्प? एक बार बात करती किसी से, एक बार रीच आउट करती। अगर आज मुझे पता होता कि शी नीड्स हेल्प एंड शी इज इन दैट ब्रेकिंग पॉइंट, मैं शायद खुद बैंगलोर पहुंच जाती उनके पास। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई सेड मुझे कुछ करना है इन माओ के लिए, अपने बच्चों के साथ, अपने लाइफ के साथ ये पर्पस बनाया और कुछ नहीं। आई एम नॉट अ स्पेशल एजुकेटर, आई एम नॉट अ ट्रेन्ड ऑटिज्म स्पेशलिस्ट, कुछ नहीं हूं मैं सिर्फ एक माँ हूं। मेरे में आज इतनी पावर है, मुझे ये पता है कि आज अगर मैं किसी से बात करूं या किसी के साथ टाइम स्पेंड करूं, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि वो बंदा मेरे पास से जब जाता है तो हंस के जाए, स्माइल करता हुआ जाए। और उस कॉन्वर्जेशन में इतनी पावर होती है ना, जब हम एक दूसरे दोस्तों से ही बात कर लेते हैं, इतनी पावर होती है ना कि अगले 7 दिन आपको ना, जिसको मेरी पर्सनल दिल्ली वाली भाषा में कहते हैं झेलेबल हो हो जाता है, जाता हो है, जाता है। झेलेबल हो Yes. जाता है। मेरे दिमाग में बस यही था कि वो माँ खुश रहे यार, क्योंकि आज मुझे पता है कि अगर माँ खुश है तो घर खुश है, बच्चा खुश है, एवरीथिंग एल्स फॉल्स इनटू प्लेस आसपास। क्योंकि आपको हर वो चीज मैनेजेबल लगने लग जाती है। आपको लगता है कि ये जो डेली स्ट्रेसेस है ना हमारे, वो मैनेजेबल हो जाते हैं। मैं नहीं कह रही कि सोल्यूशन मिल जाता है, मैं नहीं कह रही कि हमको कोई जादुई चिराग मिल जाता है, या जिसको मैं बोलती हूँ मैजिक वॉन्ड फेस। नहीं, मैजिक वॉन्ड भी नहीं है, जादुई चिराग भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट एवरीथिंग बिकम्स मैनेजेबल। And the moment you feel it's not manageable, the moment you have a doubt or a question in your mind, बूम से दिमाग में आता है, अरे यार इससे बात करती हूँ, उसको मैसेज भेजती हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मेरा बच्चा कर क्या रहा है। सो ये जो पावर है पेरेंट कम्युनिटी की, ये जो पावर है इन स्टेइंग कनेक्टेड विद ईच अदर, इट्स एक्सट्रीमली ग्रेटिफाइंग, इट्स एक्सट्रीमली ग्रेटिफाइंग। और अगर आज हम लोग सब मिलके एक इकोसिस्टम क्रिएट कर लेना हर्षाली, यहाँ पे वी हैव दिस बंच ऑफ पेरेंट्स जो ना सिर्फ खुद को एनरिच कर रहे हैं, बट आगे 15 और पेरेंट्स को एनरिच कर रहे हैं। यू कैन एक्चुअली इमेजिन द रिपल इफेक्ट इट विल क्रिएट। Yes, yes. Actually, it's a chain. Actually, if you spread the happiness and belongingness and support, no, it goes reach out to maximum. It will become a great. I mean, एक अच्छा community, अच्छा bond support हो जाएगा एक दूसरे के लिए। और हमेशा किसने बोला कि हमेशा बच्चे के बारे में बात करो, थेरेपी के बारे में बात करो, Not necessary. करो। Yeah. क्या जरूरत है हमेशा इन सब चीजों के बारे में बात करने? इन सब चीजों में तो पड़े ही हुए हो तुम 24 घंटा। अपने फेवरेट खाने के बारे में बात करो, शॉपिंग के बारे में बात करते हैं, हेयर स्पा के बारे में बात करते हैं, मे बी नई जो मूवी आई है उसके बारे में बात करते हैं, कोई गाना है जो बहुत अच्छा लग रहा है उसके बारे में बात करते हैं। There should be a time, Harshali, when we all have to realize this, that there's more to life than the diagnosis that we have at hand. ठीक है, वो सच्चाई है लाइफ की, उससे हम कर नहीं सकते हैं। True. उसको अपना स्ट्रेंथ बनाओ, उसको अपना डिजेक्शन वाला मोमेंट मत बनाओ लाइफ का। उसको ये मत सोचो कि जिंदगी मेरी खत्म हो गई, I have nothing else to live for. You still have yourself to live for. जब तक तुम ही नहीं अच्छा फील करोगे, तब तक जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सोसाइटी है, 10 लोग हैं, वो हिंदी गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उसको याद रखो, लोगों का काम है कहना। तुम में अपनी एक पोटेंशियल है, तुम में अपनी एक स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से काम करो, उस अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करो। तुम पेरेंट हो, तुम एक माँ हो, तुमसे बेटर तुम्हारा बच्चा कोई नहीं जानता।
और जो भी तुम करोगे उसके लिए ही करोगे, उसके भलाई के लिए ही करोगे. सो नेवर डाउट योरसेल्फ. ये मत सोचो कि फलान की मम्मा ये कर रही है, अरे वाह वो बच्चा तो ये कर गया, अरे वाह वो बच्चा तो वो कर गया. ठीक है, गुड, विश देम वेल. They are all on a path, they are all on a journey to find the potential of their child, their own capabilities and potential. पर इन सबको सोचते सोचते तुम खुद को मत भूल जाओ. भगवान ने तुमको भी पोटेंशियल दिया है. तुम शायद बहुत अच्छी डांसर हो, तुम्हें शायद नाचना बहुत पसंद है, तुम्हें शायद गाना बहुत पसंद है, तुमको शायद कुछ ड्रॉ करना बहुत पसंद है, तुम खाना बहुत बढ़िया बनाती हो. ये कैसे भूल जाते हो अपने में? तुम कैसे भूल जाते हो? ये सब मत भूलो. ये गलती मैंने करी है, मुझे पता है. खुद को भूल जाना, बिल्कुल भूल जाना, अपना ध्यान ना रखना. अगर आज तुम बीमार पड़ गई तो तुम्हारे बच्चे को कौन देखेगा? अपना ध्यान रखो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मस्ती मारो, वही पुराने अपने गाने सुनो, दोस्तों से मिलो, उनसे बातें करो. आजकल तो जरूरत भी नहीं पड़ती है बाहर जाके मिलने की. फोन उठाओ, व्हाट्सएप जिंदाबाद. व्हाट्सएप दोस्तों के ग्रुप्स बनाओ, किटी पार्टी के ग्रुप्स बनाओ, खूब सारे गप्पे मारो, नए नए कपड़े खरीदो, फैशन करो, फोटोज लगाओ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे. अपना एक इंस्टाग्राम हैंडल शुरू करो. साड़ी पहनना पसंद है, तुम्हारे पास बहुत साड़ियां हैं, टेक देम आउट, पहनो, पहन पहन के फोटो लगाओ यार. इतना समय तो मिल ही जाएगा. व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे. बस खुद को मत भूलो यार, मत भूलो खुद को. यू आर ऑल यू हैव. हमेशा ये याद रखो सब लोग. ये मेरे अपने रियलाइजेशंस हैं, ये गलतियां मैंने भी करी हैं अपनी लाइफ में. बस यही सिखाऊंगी, यही बोलूंगी और यही रिक्वेस्ट करूंगी कि खुद को मत भूलो यार, खुद को मत भूलो. और रिमेंबर, हमारे बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं. वो 9 महीने अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड थे. वो अम्बिलिकल कॉर्ड तो डॉक्टर ने काट दिया था डिलीवरी के वक्त, बट सारी जिंदगी वो अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा रहता है. अपनी माँ के बारे में याद करो. अभी भी शी विल वरी अबाउट तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुम्हारी तबीयत ठीक है नहीं है, तुम अभी क्या कर रही हो, आज तुमने खाना क्या बनाया. रिमेंबर ऑल योर कॉन्वर्सेशन विथ योर ओन मदर. ये अभी भी तुम्हारी माँ अभी भी तुमसे ये सब पूछती रहती है. क्यों पूछती है? ऑल आर 30+ पीपल यार, 35+, 40+ पीपल. अभी भी वो तुमको बच्चा ही देखती है ना. अभी भी यही सवाल पूछते हैं ना माँ बाप आपसे. क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो अम्बिलिकल कॉर्ड अभी कटा नहीं है, अभी भी है, इनविजिबल है पर है. सो हमेशा ये याद रखना, आपके जो बच्चे हैं वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी नज़र से दुनिया को देख रहे हैं, वो आपकी नज़र से दुनिया को सीख रहे हैं. तो आपके अपने बच्चे को ये सिखाना चाहते हो कि दुनिया का मतलब ही ये है, जिंदगी का मतलब ही ये है, रोना धोना, सैड रहना, डिजेक्टेड रहना कि हे भगवान मैं अब क्या करूं करना, ये सब बोलते रहना. नहीं ना, यू वुड नॉट वांट दैट टू हैपन ना. So you really have to take care of your own self, your physical and your mental health. और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर महीना पार्लर वार्लर जाना पड़ेगा, सलोन वोलन. नहीं नहीं नहीं. अपने ही टाइम पे, अपने ही उस पे, द मोमेंट यू विल फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, द मोमेंट यू विल फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, वो जो चेहरे पे चमक आएगी ना आपके, 10 सैलून फेल हैं उसके आगे, 10 फेशियल्स फेल हैं उसके आगे. दिस इज माई गारंटी टू यू, दिस इज माई गारंटी टू यू. वो जो चमक आंखों में होगी ना आपके, वो कोई फेशियल या कोई सोना या कोई सलोन आपको नहीं दे पाएगा. वो खुशी अंदर फील करनी है आपने. एंड दिस इज अ स्ट्रगल, लेट मी टेल यू. जो कुछ भी मैं शेयर कर रही हूँ वो सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. अंदर से खुशी. एक 2-3 दिन पहले, मुझे याद नहीं आ रहा किसने फेसबुक पे वो लगाया था, हमारी फ्रेटर्निटी की कोई सीनियर मदर थी, 2 कार्टून्स थे. एक कार्टून के यहाँ पे हैप्पीनेस लिखा हुआ था. सो दूसरा जो कैरेक्टर है कार्टून का, वो पूछता है कि ओ वेयर डिड यू फाइंड इट, आई हैव बीन लुकिंग फॉर दिस. सो जिसके यहाँ पे हैप्पीनेस लिखा होता है वो कहता है आई फाउंड इट इनसाइड मी. वो याद रखना, हैप्पीनेस इज नॉट अ रीजन, हैप्पीनेस इज अ वे ऑफ लाइफ. और वो आपको कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता. जब तक यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर ओन सेल्फ, तब तक कोई नहीं दे सकता. और भगवान ने आज हमको ऐसा नहीं बनाया कि आज हमारे अंदर कुछ भी नहीं है जिसके लिए हम प्राउड ना हो. यहाँ पे मेरे को 2-3 जैसे हर्षाली हैं, अभी हर्षाली से मेरी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो हम बालों के बारे में बात कर रहे थे.
तो हर्षाली कह रही थी कि मेरे बाल तो सब उड़ गए। मैंने कहा हर्षाली मेरे भी उड़ गए सारे बाल। बट मैं हर्षाली को ये बोलना चाहती हूँ, हर्षाली तेरी स्माइल कितनी सुंदर है। आज हर्षाली का वीडियो अगर ऑन है तो नहीं पता मुझे, वो पिंक पहन के एंड देयर सो मच सनलाइट ऑन हर फेस। हर्षाली, कैन वी सी योर वीडियो प्लीज? It's on actually. Just look at her. Can you all see Harshali right now? Just look at her. She was worried about her hair, but मैं हर्षाली को बोलना चाहती हूँ, हर्षाली देख पिंक पहना है and there's so much sunlight on your face और उसकी smile. She's so beautiful. Thank you, Kriti. Thank you so much. That is actually very motivating. She's looking. बाल उड़ गए तो क्या हुआ यार, घर की खेती है फिर आ जाएगी. Don't worry. But वो जो smile, वो जो सुंदर लग रही है पिंक पहन के and with that so much sunlight on her face. देखना कितनी सुंदर है तू. हर लोगों में, सब में, स्पेशली माओ के लिए बोलूंगी मैं, हमारे वो मदरहुड इतना स्ट्रेसफुल चीज होती है ना। जैसे आप माँ बन जाते हो ऑटोमेटिकली आप बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले लेते हो। होना भी चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए, माँ हो गई आफ्टर ऑल। बट बार बार यही बोलती रहूंगी, खुद को नहीं भूलो। जो गलती मैंने करी है वो नहीं करो, वो गलती। हम में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर है जो खुशी देता है। अपनी खुशी को अपने बच्चे के डायग्नोसिस पे, अपने बच्चे के इंटरवेंशन पे, अपने बच्चे के अचीवमेंट पे, उसका रीजन मत बनाओ। रिमेंबर दैट इज जॉय। आज अगर बच्चा आपका कुछ अचीव करता है, दैट इज जॉय, दैट इज प्राइड। पर वो जो हैप्पीनेस नामक चीज है ना, वो आप खुद हो, वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर है। आज अगर आप इस जर्नी पे निकले हो, भूल जाओ डायग्नोसिस। मदरहुड जर्नी ही डॉन्टिंग है। आज अगर आप किसी और माँ से बात करोगे ना जिसका बच्चा, सोचो आपकी एज का ही बच्चा है, आपका बच्चा 14 साल का है, 15 साल का है, किसी और माँ से जाओ ना, अपने कॉलोनी में बाहर जाके बात करो जिसका बच्चा 14-15 साल का है, वो रो रही होगी, हाय उसका पेपर है, मैथ्स का पेपर है, पढ़ाई नहीं करता, सारा दिन गेम खेलता रहता है, क्या करेगा, फेल होगा। और आप बोलोगे कि अच्छा मेरा बच्चा तो अभी भी पॉटी करता है पैंट्स में, अब मैं क्या करूं। कैन यू अंडरस्टैंड? सब माओ के लाइफ में प्रॉब्लम है बच्चों को लेके। कोई खाना नहीं करता, किसी कोई पढ़ाई नहीं करता, किसी कोई बच्चा फेल हो गया पढ़ा एग्जाम में, तो माँ का मतलब ही टेंशन है। ये मान ही लेते, हमने अपने माँ को भी देखा है, दिन रात उठते बैठते उनको सिर्फ हमारी चिंता रहती थी, वो हमारी टेंशन रहती थी उनको। तो माँ, आई थिंक मदरहुड का सिनोनिमस होना चाहिए टेंशन। जरूर टेंशन करो, किसी ने नहीं मना किया, जरूर सोचो, रातों को मत सो, इट इज ओके, बट देन डोंट लेट इट किल योर स्पिरिट। आपके अंदर एक स्पिरिट है। आज अगर मैं आप सबको बोलूं बैठो और 4 लाइन लिखो टू जब आप 15 साल के थे, आई एम गिविंग यू लाइक 2 मिनट्स। अगर कोई आना चाहता है यहाँ पे तो आप आके मुझे बताओ। आज मैं आपको कह रही हूँ, ऑन वैलेंटाइंस डे सेंड अ लव लेटर टू अ 15-year-old यू। 4 लाइन लिखो, 2 लाइन लिखो या 2 वर्ड्स लिखो। कैन यू डू दैट? जब आप 15 साल के थे, जब आप 16 साल के थे, जब आप 17 साल के हुए, 18 साल के हुए, ऋतिक रोशन के फैन हुए, जब आपने किसी अपने फेवरेट गाने पे आपने डांस किया और पूरी फैमिली के सामने डांस किया और सबने बहुत तालियां बजाई, वो मोमेंट्स याद है आपको? जब आपने कोई गाना गाया और आप सबने बोला वाह कितना अच्छा गाया, स्कूल के किसी कंपटीशन में गाया, वो मोमेंट्स याद है आपको? कहाँ गई वो लड़की? कहाँ गई? है ना अभी भी अंदर। हमने ही गायब किया है ना उसको, गायब नहीं किया, हमने ही दबा दिया ना उसको। आज भी गुनगुनाना पसंद है, आज भी गाना पसंद है, लिपस्टिक खरीदना पसंद है, लिपस्टिक लगाना पसंद है, नेल पेंट लगाना पसंद है। क्यों हम बोलते हैं कि यार ये बच्चे के लिए टाइम ही नहीं मिलता, कब लगाएं लिपस्टिक, कब लगाएं नेल पेंट? ये हम खुद को क्यों बोलने लग जाते हैं ये सब चीजें? नहीं है जरूरत ये सब बोलना यार, नहीं है। एक ही लाइफ मिली है, एक ही लाइफ मिली है, जीते हैं ना यार थोड़ा। अगर आज मैंने अपने लिए 5 मिनट निकाल के मेरा फेवरेट गाना सुन लिया
या मेरा बच्चा किसी पंजाबी गाने पे नाच रहा है, मैंने उसके साथ नाच लिया, उसमें कुछ बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, करो ये सब, खुद को मत भूलो, हैप्पीनेस ढूंढने कहीं बाहर मत जाओ, और किसी चीज को रीजन मत बनाओ, इफ माई चाइल्ड डू दैट, इफ माई चाइल्ड डज दैट, आई विल बी हैप्पी। नो, नो, मत बोलो ये सब खुद को। इसमें कृति एक्चुअली क्या हो गया है कि मदर्स ने एक इंटीग्रल पार्ट बना लेते हैं बच्चों को अपना, दे फॉरगेट कि वो भी एक सेपरेट इंडिविजुअल है एंड वी आर आल्सो सेपरेट इंडिविजुअल। तो हमें भी वी आल्सो हैव राइट्स टू एंजॉय, राइट्स नॉट, लेट्स नॉट से राइट्स, बट एक है ना क्या, गिल्ट आता है अगर हमने That's what. बच्चों को, मैं नेक्स्ट उसी पे आ रही थी। गिल्ट अगर मैं आज कर लिया और उसका एक थेरेपी नहीं ले गई और मैंने कर लिया तो गिल्ट आता है। मैं एक सजेशन दूंगी, मैं प्योरली अपने ही एक्सपीरियंस से ये सजेशन दूंगी। अगर if someone can actually if that suggestion can help someone, then I'll be very happy. Dr. Pratiksha ने यहाँ पे chat पे I can see she had asked me a question. Yes. How to spare time for ourselves, that me time. So Dr. Pratiksha, the best that we can do is that पहले तो अपने बच्चे का, शांति तो दिमाग में तभी आएगी ना, पहले अपने बच्चे का पूरे दिन का शेड्यूल देखिए, उस पूरे दिन में वो क्या कर रहा है, कितना टाइम आपका ले रहा है, कितना टाइम आपको देना है, वो पूरा शेड्यूल आप पहले देखिए, नॉट ओनली देखिए, उसको लिखिए, और उस शेड्यूल के बीच में 15 मिनट 10 मिनट निकालिए जहां आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, और उस 10 मिनट में अगर आपको बैठ के फेसबुक ही करना है तो करिए, अगर आपको अपने पुराने फोटोज निकालने हैं, कुछ करना है, करिए, वॉट एवर दैट यू फील गुड अबाउट, वॉट एवर यू फील गुड अबाउट यू। और ये जो गिल्ट की बात जो हर्षाली ने करी है ना, दिस कम्स वेरी नेचुरली टू मदर्स, कि हे भगवान, मैं अगर बैठ गई मूवी देखने 3 घंटा 4 घंटा तो आई एम सच अ बैड मॉम, आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई चाइल्ड, ये देखो मेरा बेटा यहाँ पे घूम रहा है, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, बट आई एम हैप्पी डूइंग इट, आई एम हैप्पी डूइंग इट, बिकॉज हम लोगों को ना एक बहुत ही फनी मैंने एक्सप्रेशन सुना है लेटली, एक ब्लॉग में पढ़ा था मैंने, इट इज कॉल्ड मदरिंग। वो हम लोगों को मदरिंग करने की इतनी आदत हो चुकी है ना कि हम अपने बच्चे को 15 मिनट अगर अकेले छोड़ने का भी सोचते हैं ना तो हमारा दिल दहल जाता है कि हम अकेले कैसे छोड़ देंगे, हे भगवान पता नहीं वो क्या करेगा, हे भगवान। अरे थोड़ा ट्रस्ट तो करो अपने बच्चे पे, अपने मदरहुड पे, अपनी सीख पे, देखो छोड़ के 15 मिनट क्या करता है, क्या करेगा, क्या करेगा, 2-4 चीजें ही तोड़ देगा ना, तोड़ने तो और आ जाएंगी यार, क्या करेगा। वी रियली हैव टू लर्न टू लेट गो ऑफ आवर चाइल्ड, और लेट गो हम तभी कर सकते हैं, एकदम से धड़ाम करके लेट गो करने की जरूरत नहीं है, पहले 10 मिनट अकेला छोड़ के देखो क्या किया, आसपास रखो उसको, पर ना आप उसको डिस्टर्ब करो ना वो आपको डिस्टर्ब करे, आप अपना काम करो, 10 मिनट छोड़ो, 15 मिनट छोड़ो, उस बच्चे को भी तो पता चले ना, देयर इज लाइफ बियॉन्ड माय पेरेंट्स, देयर लाइफ बियॉन्ड माय मदर्स, आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट, एंड बाय डूइंग दिस यू आर एक्चुअली टीचिंग योर चाइल्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल विच इज इंडिपेंडेंस। वो तो अल्टीमेटली सिखाना ही पड़ेगा ना बच्चे को, वो हमारी मदरिंग नहीं जाती है। छोड़ के देखो बच्चे को क्या हो सकता है, छोड़ के देखो बच्चे को क्या कर सकता है वो। We have to teach that, we have to teach that to our child, and this will only begin with us. So Dr. Pratiksha, I think जो आपने बोला मी टाइम ढूंढने का, वो बेस्ट वही टाइम है। ये एक्सपेरिमेंट अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा करना शुरू करो। I know most of us are alone, most of us do not stay in a joint family, in-laws हो साथ में, कुछ हो तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। Most of us stay in a nuclear family, a nuclear setup. दरवाजे, बालकनी के दरवाजे वरवाजे अच्छे से बंद कर दो, किचन बंद कर दो, थोड़ा थोड़ा करके ये सब करना शुरू करना पड़ेगा हमको, नहीं तो हम नहीं, ये जो मदरिंग जो टर्म जो सीखा है ना मैंने लेटली, वो हम उससे छुटकारा नहीं मिलेगा हमको। हमारा बच्चा जब 22-25 साल का हो जाएगा ना, तब भी हम मदरिंग करते रहेंगे, क्योंकि बच्चा है भाई, हमारे लिए तो हमेशा ही बच्चा रहेगा, अपने माँ बाप के लिए हम अभी भी बच्चे हैं ना। एंड
everything requires time, everything requires patience. And the only way we can actually inculcate and experiment this entire philosophy is by experimenting with it. We have to begin somewhere. कि 5 मिनट छोड़ा उसको, उसके फेवरेट टॉयज देके बिठा दो, जो उसको फेवरेट है, जो उसके फेवरेट टॉयज हैं, कोई फेवरेट राइम है, कुछ गाना है या कुछ है, कुछ फेवरेट टॉयज है, एक छोटा सा कॉर्नर बना दो उसका, तकिए वकिए लगा के, कुछ लगा दरी वरी बिछा के, जो उसको एंजॉय करेगा वो 10 मिनट, उसको वहां पे छोड़ दो, उसके टॉयज रख दो वहां पे कुछ रख दो, और आप 10 मिनट अपना काम करो जो आपको करने का मन है। आप बहुत दिनों से सोच रहे हो आपने अपने नेल पेंट लगाना है, या किसी दोस्त से बात करनी है, या कोई रिश्तेदार है आपका, आपकी कोई बहुत फेवरेट मासी है, या कोई फेवरेट मामी है, या कोई बहुत फेवरेट है जिनसे आपने बहुत दिनों बात नहीं करी, उनसे बात करो, जनरली फोन करके अपने दोस्त से बात करो। सो वो 10-5 मिनट आपको अपने बच्चे के शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही निकालना पड़ेगा। हमारी लाइफ थोड़ी सी टेढ़ी लाइफ है। सो सबसे पहले अपने बच्चे का शेड्यूल समझिए, सबसे पहले अपने बच्चे का जो दिन होता है ना वो समझिए। उसमें इफ यू कैन थिंक अबाउट 10-15 मिनट जहां आप अपने बच्चे को थोड़ा सा बिठा के अपने लिए निकाल सकते, निकालिए। एंड डोंट फील गिल्टी कि आपने अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, अपने बच्चे को नहीं देखा। मैं भी बहुत गिल्ट फील करती थी। मैं एक दिन, मुझे अभी भी याद है, आजकल मुझे हंसी आती है जब मुझे वो मोमेंट याद आता है मेरी लाइफ का। मुझे अपने बच्चे के लिए डाइपर्स खरीदने थे और मुझे दिखा कि मेरा बेटा सो रहा है, तो मैंने अपनी मॉम इन लॉ को बोला कि मम्मी मैं डाइपर्स लेके आती हूँ, ये तो सो रहा है आराम से। द मोमेंट आई स्टेप्ड आउट ही वोक अप एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। इतना रोया, मतलब आंखें वाखें सुजा के गला वाला बैठ गया उसका उस आधे घंटे में जो मैं मार्केट जाके डाइपर लाई। एंड व्हेन आई केम बैक आई वाज लाइक, हे भगवान, मैं इसको अकेला छोड़ के चली गई थी, देखो इसने अपनी हालत क्या कर ली, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं किसी को और को बोल देती, वो जाके ले आता। मैंने वो काम इसलिए किया था क्योंकि मुझे बाहर जाने का मन कर रहा था, मुझे लगा छोटा सा वॉक हो जाएगा, मौसम अच्छा था। मैंने कहा यार वॉक करके आती हूँ, घर में बैठे बैठे दिमाग सड़ गया है। I kept regretting that moment कि मैंने क्यों किया। फिर मैंने सोचा कि यार आधे घंटे की तो बात थी, 15 मिनट की तो बात थी, कोई बात नहीं। उसको भी पता होना चाहिए कि माँ हमेशा अवेलेबल नहीं होगी, which is the truth in life। माँ बाप हमेशा नहीं रहेंगे लाइफ में, हमको उनके बिना जीना सीखना पड़ेगा। तो जो चीज हमको सीखनी पड़ेगी वो इनके लिए अलग क्यों है? जस्ट बिकॉज दे हैव ऑटिज्म, जस्ट बिकॉज दे हैव ADHD, जस्ट बिकॉज दे हैव अ डिफाइंड कंडीशन? नहीं यार, एट द एंड ऑफ द डे दे आर ह्यूमन बीइंग्स। आज अगर हम लोगों को पैरों पे खड़ा होना हमारे माँ बाप ने सिखाया, तो हमको भी तो ये काम करना चाहिए ना अपने बच्चों के लिए। हर चीज को ऑटिज्म के लेंस के थ्रू ही क्यों देखना है? हमको नहीं देखना। हमको ये भी इंसान है, हार्ड मास का बना हुआ इंसान है, हम इनको सिखाएंगे। ठीक है, जिस तरह से हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया था, थोड़ा सा अलग होगा तरीका सिखाने का, पर हम सिखाएंगे चाहे कितना भी समय लगे, क्योंकि हम हमेशा साथ नहीं रहेंगे हम हमेशा साथ। आज इनको सिखाना पड़ेगा ही, तो थोड़ा करके शुरू करिए। अगर आज आपका बच्चा 3-4 साल का है, तो 3-4 साल है, बहुत छोटा बच्चा है, वहां पे प्रॉबेबली हम शायद ये सब काम ना कर पाए। पर अगर आपका बच्चा, मेरा सजेशन ये है, और देखिए मैं सिर्फ एक पेरेंट हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगी। द मोमेंट आपका बच्चा 6-7 साल का होता है, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा करके ना अपने बच्चे पे भरोसा करना शुरू करिए। आई विल नॉट कॉल इट लेटिंग गो ऑफ योर चाइल्ड, आई विल नॉट राइट नाउ कॉल इट टीच द चाइल्ड इंडिपेंडेंस। टीच योरसेल्फ to let go of your child. Trust him. Trust your own self. Trust your own mothering. Trust it. छोड़ के देखिए ना 10 मिनट क्या होता है। मन को मनाइए, और वो 10 मिनट जब आप थोड़ा करने शुरू करेंगे, वो 10, 15, 20, 25, 1 घंटा, आधा घंटा, वही आपका रेस्पाइट बनेगा। एंड इट इज ट्रू फॉर एवरीबडी, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। शुरू करिए, थोड़ा करके शुरू करिए।
This is the most important skill you will be able to imbibe in your child. Forget about the diagnosis. Most important skill. At the end of the day, we all are striving for that. कि कल को अगर मैं ना रही, मेरे बच्चे को कौन देखेगा? क्यों सोचना इस तरह हमने? आज से शुरू करो ना. It is never too late. देखते हैं करके. मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था. मैंने उसको 5 मिनट छोड़ना शुरू कर दिया था. मैं देखती थी अच्छा क्या कर रहा है. 10 मिनट देखा, अच्छा क्या, लिटरली घड़ी देख देख के करती थी मैं. अच्छा देखती हूँ क्या कर रहा है, अच्छा देखती हूँ क्या कर रहा है. और मुझे लगा अरे यार ये तो बिंदास रहता है 10 मिनट. अच्छा 15 मिनट हो गए तो आया ही नहीं मेरे पास अभी तक. चीखता हुआ चिल्लाता हुआ कुछ करता. मैंने कहा मस्त अपना खेल रहा है. पेपर वेपर फाड़ दिए, न्यूज़पेपर फाड़ दिए, सारा कमरा गंदा कर दिया, पर खेल रहा है. बट ही इज हैप्पी, ही इज सेफ. दो ही चीजें तो कंफर्म करनी होती है ना माँ को, कि वो सेफ है, कि वो खुश है जो भी वो कर रहा है. और क्या चाहिए. उसके चिप्स रख दिए थे या कुछ खाने का रख दिया था उसका सामने. मैंने कहा देखती हूँ क्या करता है, देखती हूँ क्या करता है. तो मस्त था. अपना पेपर वेपर फाड़ के, अपना वो करके, ठीक है मानते हैं बाद में गंदगी मचा ली उसने, वो साफ कर देंगे यार. गंदगी साफ करने में तो हम सब प्रो हो चुके हैं. वो इट्स लाइक जिसको कहते हैं ना हिंदी पिक्चरों का डायलॉग, बाएं हाथ का खेल है वो. गंदगी तो हम ऐसे ऐसे साफ करते हैं. हम तो दूसरों के घरों में भी जाके गंदगी साफ करके आ जाएंगे. हम इतने प्रो हो चुके हैं. So I think in answering a lot of questions who people are asking, but finding that me time, one, we have to start doing it for our own self, for our own child. And secondly, कभी guilt मत लाइएगा. कोई भी आप काम करें, अगर आज अपने लिए थोड़ा सा 5 मिनट समय ढूंढ के अगर अपने लिए आप आज कुछ किया है, don't feel bad about it. कुछ बुरा नहीं किया भाई, कुछ बुरा नहीं किया, बहुत अच्छा किया है. अगर 10 लोग आपके आसपास आके बोले ना हो कैसी माँ है, अपने बच्चे को भूल गई, गोलगप्पे खाने चली गई, देखो बैठ के नील पेंट लगा रही है, बच्चा उधर ऐसे बैठा हुआ है अकेला, पता है स्पेशल नीड बच्चा है, अकेला छोड़ दिया उसको. इधर से सुनना, इधर से निकाल देना. बिकॉज गो बैक टू दैट हिंदी गाना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, दिस इज माई जर्नी, दिस इज माई चाइल्ड, आई नो बेस्ट, थैंक यू सो मच. बस भगवान आपका भला करे. बस ये अपना आपको बोलते रहना है कंटिन्यूअसली. आप यहाँ सबको खुश करने नहीं आए हैं प्लीज. वो क्या था ना, मैंने पढ़ा था, यू कैन नॉट, क्या था वो, हाँ, यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी, यू आर नॉट. सो याद रखिए उसको, गुड़ मंत्र बना लीजिए अपना, यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी, यू आर नॉट टकीला. ये बस याद रखिए इस चीज को. और मेरा जो जिसको कहते हैं ना, मेरा जो पंच लाइन होता है वो यही होता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, भगवान आपका भला करे, थैंक यू सो मच. कुछ नहीं है यार, कुछ गिल्ट नहीं है. हर्षाली पता है ये जो ये मैंने किया यार अपने साथ, ये मैंने भी किया. 4 दिन तक गई थी, मैंने अपने बच्चे को अकेला छोड़ दिया, मैंने अपने बच्चे को अकेला छोड़ दिया. इवन आई हैव डन दिस टू माई सेल्फ यार. और ये सब करके पता, और हम क्या करते हैं, अपने सेल्फ वर्थ को मारते रहते हैं. बाय द टाइम अपना बच्चा सीखने लायक भी हो जाता है ना, उस टाइम पे हमारी हालत जो हो जाती है ना, हम सिखाने लायक नहीं रहते. पता है, अंडरस्टैंड दिस ट्रांजिशन इन आवरसेल्व्स. जब हमारा बच्चा रिसेप्टिव हो जाता है, जब हमारा बच्चा अडेप्टिव हो जाता है, हमने अपनी हालत तब तक इतनी खराब कर चुकी होती है ना, हम सिखाने लायक नहीं रहते. हम नहीं रहते सिखाने लायक. कहीं हमें भी मोटिवेशन चेंज हर हफ्ते कहिए, हर इसमें चाहिए, हमें वो करना चाहिए मदर्स को. बिकॉज अदरवाइज सारा टाइम उसमें, इवन मैं तो ये कहती हूँ जो एजुकेटिव हमारे जो वेबिनार सेमिनार्स और ये होते हैं, इवन ये अटेंड करने के लिए होता है कि मुझे टाइम नहीं है बिकॉज ऑफ दिस. और जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे या फिर आप जुड़ोगे नहीं पेरेंट्स से, जैसे हमने ये सब प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, स्पेशल मॉम्स है, स्नेक है, अवाम, व्हाटएवर, जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक आप एजुकेट कैसे होंगे, आप उसमें से बाहर कैसे निकलोगे. ये भी होता है ना कृति की, ये लोग यहाँ पर भी कुछ लोग आने के लिए मतलब वो हो जाते हैं कि नहीं हमें टाइम नहीं है ना, वो भी एक होता है. वही है ना, हमने स्कूल में इंग्लिश में पढ़ा था ना, when there's a will there's a way. हाँ, हम उस विल को ही इतना मार लेते हैं ना हर्षाली, हम उस विल को इतना मार लेते हैं ना. एंड दिस कम्स फ्रॉम विद इन यार. आप ये चीज किसी को सिखा नहीं सकते हो, यू कैन ओनली रिक्वेस्ट देम, यू कैन ओनली रिक्वेस्ट. और सबको ये रियलाइज होना चाहिए कि ये जो हम अपने साथ करते हैं, ये हम अपना भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं.
ये हमको सीखना पड़ेगा, ये हमको समझना पड़ेगा, नॉट ओनली समझना पड़ेगा, ये हमको रियलाइज करना पड़ेगा कि आज जो भी मैं कर रही हूँ, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जो कर रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, जो मैं अपने आप को समझती हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम दिस एंड दैट, एट द एंड ऑफ द डे एक बार ना आंख बंद करके सोचिए, ये मैंने अच्छा सोचा अपने लिए, ये अच्छी थॉट थी? कीप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, खुद को क्वेश्चन करिए, खुद को हमेशा 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 ये क्वेश्चन करते रहिए, ये अच्छी थॉट थी, ये मैंने अपने लिए बहुत अच्छा सोचा। कीप क्वेश्चनिंग दैट टू योरसेल्फ, एक ना एक दिन रियलाइज होगा कि हे राम, मैं अपने लिए अच्छा नहीं सोच रही हूँ, ये मैं क्या सोच रही हूँ अपने बारे में। एम आई द सेम गर्ल जो 16 साल की 17 साल की लड़की थी? हमेशा हमेशा खुद को क्वेश्चन करते रहिए। और आज अगर इफ यू पीपल कैन डू दिस एक्सरसाइज, प्लीज डू दिस। 4 लाइन खुद को लिख के भेजिए। Yes. When you were 16-year-old or 17-year-old, what would you want to tell your 16-year-old self? जरूर करिए। और अगर आप में से कोई अगर स्पेशल मॉम पर है तो प्लीज उसको पोस्ट करिए, प्लीज उसको। स्पेशल मॉम के लिए और कुछ कहना चाहोगी कृति? स्पेशल मॉम के लिए बहुत बॉलीवुडिश और फिल्मी होके बात करूंगी, क्योंकि मैं बहुत बॉलीवुड वाली लड़की हूँ। नहीं, काफी बॉलीवुड लड़की हूँ मैं। मेरे लिए हॉलीवुड टॉलीवुड कुछ नहीं, मेरे लिए बॉलीवुड है। आई एम अ बॉलीवुड चाइल्ड। स्पेशल मॉम, बहुत हीरो जैसे बात करती हूँ अब मैं, ठीक है? कोई हिंदी फिल्म का हीरो, बी ग्रेड फिल्म का डायलॉग, बॉलीवुड डायलॉग, ओके। द स्पेशल मॉम दिल है और जान है। स्पेशल मॉम पर्पस कम, जान ज्यादा है, क्योंकि बहुत मजा आता है हर्षाली देख के। जब मुझे अननोन व्हाट्सएप मैसेजेस मिलते हैं ना, मैं जानती भी नहीं हूँ उनको कौन है क्या है, और जब वो अननोन व्हाट्सएप मैसेजेस मैं देखती हूँ ना, यहाँ पे उन्होंने थैंक यू बोल रखा है फॉर दिस प्लेटफॉर्म, फॉर द सेशन दैट वी हैव डन और अ कॉन्वर्सेशन दैट वी डिड, एंड हाउ इट एक्चुअली पॉजिटिवली इम्पैक्टेड देयर लाइफ एंड देयर जर्नी, तब लगता है कि वाह यार, मतलब कुछ तो कहीं पे सही स्पेशल मॉम कर रहा है। और मैं ये मानती हूँ हर्षाली, अगर आज स्पेशल मॉम ने 5 फैमिलीज को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर दिया ना, और दे स्टार्ट व्यूइंग दिस स्पेशल नीड जर्नी इन अ वेरी वेरी डिफरेंट लाइट, आई एम डन फॉर दिस लाइफ टाइम यार। मैंने अपना कर लिया, मैंने अपना अर्न कर लिया, बस। मुझे पर्सनली कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इस जर्नी को एंजॉयबल बनाना चाहती हूँ, मैं बस इस जर्नी को मैनेजेबल बनाना चाहती हूँ, मैं इस जर्नी को वो बनाना चाहती हूँ स्पेशली माँ के लिए, that she'll be proud that she is a special need mom. I would really want to. मैं बता रही हूँ हर्षाली, I just get very emotional when I think about it. I know. we do get because it's our baby, another baby. Our communities we have said for parents, no, it's like our babies. अगर आप लोग थोड़ा सा आना चाहें स्पेशल मॉम पे, फेसबुक पे जाके सर्च करिए द स्पेशल मॉम ग्रुप, तो आपको मिल जाएगा, आप लोगों को दिख जाएगा स्पेशल मॉम ग्रुप। और देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स दैट वी आर डूइंग, काफ़ी इम्पोर्टेंट से ही प्रोग्राम है हमारे। अभी एक हमने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम ही रखा है हमने 10 का दम। वो प्रोग्राम इज एक्सट्रीमली क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज उस प्रोग्राम में हम वो क्यूरेशन कर रहे हैं जो जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द लाइफ, द जितने भी लाइफ स्किल्स और जो मोमेंट हमने एज अ मॉम, एज मेरी जर्नी में जो हमने जो सीखा है,
और जिस तरह घर का कहीं बाहर नहीं, कुछ नहीं, बट घर के सामान के साथ और घर में जो चीज़ें हैं उसके साथ जो मस्तियाँ हमने करी हैं, तो वो प्रोग्राम हमने क्यूरेट किया है। थोड़ी सी मदद ली है हमने पेरेंट प्रोफेशनल से, क्योंकि हम इसको और ज़्यादा फिर से बॉलीवुड का शब्द यूज़ करूँगी, जानदार बनाना चाहते थे, इफेक्टिव बनाना चाहते थे इसको, एंड समथिंग दैट कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेबल एज वेल। और ये प्रोग्राम ऑनेस्टली उनके लिए है, मैं सबको बोल रही हूँ, इट्स ऑनेस्टली फॉर मॉम्स लाइक मी, जिनके पास बिल्कुल समय नहीं था ऑटिज्म के बारे में पढ़ने का, ADHD के बारे में पढ़ने का, या स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स के बारे में सीखने का। ये स्पेसिफिकली क्यूरेट किया गया है उन पेरेंट्स के लिए, उन माओ के लिए, और दिस विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल, it will be extremely effective, or thanks to the professionals who have helped us in curating this program. A lot of people asking for the Facebook group. मैं ना chat में अभी mention कर देती हूँ आप सबके लिए। हाँ, डाल देते हैं उसका। हाँ, just give me a moment if I just want to talk about this program. And this is based on one of our home enrichment programs. 3 तरह के programs हम 2021 में करने वाले हैं। We have already posted about it. एक हेड है हमारा होम एनरिचमेंट प्रोग्राम, एक हेड है हमारा पेरेंट लेड वेबिनार्स, और तीसरा है हमारा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। हमारे पेरेंट लेड वेबिनार्स क्लोज सेशंस होते हैं, क्योंकि हम उसमें उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही पर्सनल है पेरेंट्स के लिए। सो कीपिंग इन माइंड एंड रेस्पेक्टिंग देयर प्राइवेसी, वो हमारे क्लोज सेशंस होते हैं, वो हमारे कहीं पे भी लाइव नहीं होते हैं। वी जस्ट गॉट ओवर टॉकिंग अबाउट रबिंग एंड touching of private parts, and we very successfully did workshops on menstruation, कि हम अपने बच्चों को कैसे, हम अपनी लड़कियों को कैसे सिखा सकते हैं, कैसे उनको हम तैयार कर सकते हैं, because ultimately they will start menstruating. वो हमने, हमारे 4 वर्कशॉप्स उसके हो चुके हैं ऑलरेडी। सो दीज आर ऑल क्लोज सेशंस दैट वी डू। पेरेंट लेड वेबिनार्स जो हमारे होते हैं, वहाँ पे पेरेंट खुद आके हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जिससे हम लोग भी सीखें। Again, all these programs are very, very personal to me, very close to me, because इस तरह से मैंने भी अपनी लाइफ में चीज़ों को सीखा है, चीज़ों को समझा है, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी समझ रही हूँ अपनी जर्नी में। और so it's all based on अपने my own experiences, all these programs. अभी हमारा पेरेंट लेड वेबिनार एक और होने वाला है, बहुत वी आर ब्रिंगिंग अनदर वेरी वेरी सीरियस टॉपिक, जो आपको वो ग्रुप में और हमारे पेज पे दिख जाएगा अबाउट दैट टॉपिक। सो दीज आर ऑल क्लोज्ड सेशंस, सो यू हैव टू जॉइन दीज सेशंस बाय रजिस्टरिंग योरसेल्फ। और ज़रूर हमारा 10 का दम का प्रोग्राम देखिएगा, आप देखते ही समझ जाएंगी कि अ लेजी मदर लाइक मी हैज़ क्रिएटेड दैट प्रोग्राम। तो आप लोगों को देखते ही समझ में आ जाएगा। एंड thankfully it is curated, and professionals are taking this forward, this program, and the special mom, the platform is always there. We are constantly trying to help parents as much as we can by picking up the little irritants and the challenges of our life. And thanks to all of you for the acceptance and the love. बहुत प्यार मिलता है, बहुत एक्सेप्टेंस मिलती है, और हमको बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर कि आप लोग किस तरह से इसको एक्चुअली इसका मेरिट, इसकी क्रेडिबिलिटी समझ रहे हैं, मेरे पर्पस को समझ रहे हैं, मेरे विजन को समझ रहे हैं पर्सनली, तो बहुत हार्टनिंग लगता है ये सब देखकर। So I will post the group link very soon. Posted it in chat box. That is our okay. Special mom का that is our page. मैं quickly mention कर देती हूँ। हाँ, ग्रुप का भी। And if anybody wants to say something, ask something, you please go ahead. हाँ प्लीज, मैं बहुत देर से बात कर रही हूँ। मेरी बातें कभी खत्म ही नहीं होंगी अगर मैं बोलना शुरू करूंगी। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है एंड कुछ बताना चाहता है, मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहता है अबाउट माय जर्नी, about the special mom, or if you would want to share something, ask something, please do, please do. Yes, please, you can unmute and share.
Hello. Yes, Pushpa. Hi, Harshali. How are you? Hi. Hi, Kriti. Hi Pushpa. कैसे हो? बिंदास. तुम तो पूरा पावर पैक हो. मतलब it's awesome. It's awesome. And special mom के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि when I first time connected with Kriti and Kriti still तुमने बहुत कुछ सिखाया, तुमसे बात करके, स्पेशल मॉम पे जाके, नीलांजना दी से मिलवा के. So thank you so much. थैंक यू पुष्पा, थैंक यू. तुम भी जुड़ी हुई हो स्पेशल मॉम के साथ. अच्छा लगता है. लाइक माइंडेड लोग हैं हम सब. बहुत कुछ सीखा है एक्चुअली स्पेशल मॉम में जाने के बाद ना. मैं इनफैक्ट बेटे को रेस कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, बट जो पेरेंट्स की जो फीलिंग्स होती है ना, हम कहीं शेयर नहीं कर पाते. वी डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म, इनफैक्ट नॉट विद इन द फैमिली ऑल्सो वी कांट शेयर. बट लगता है, अच्छा लगता है दूसरे पेरेंट्स की जर्नी सुन के. बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि यस वी कैन डू. एंड पुष्पा, द बिगर फैक्ट इज, जब आपको रियलाइज होता है ना कि आप अकेले नहीं हो. यस. जब भी एक लाइफ में जब भी प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, ह्यूमन दिमाग है, ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन हार्ट है. हमको अपनी प्रॉब्लम, अपना वो बहुत यूनिक लगता है. That I am going through, nobody will be able to understand. But the beauty of our fraternity is this, that we all understand what we all are going through. Yeah, you know, Kriti, मैं खुद एक्चुअली ना मैं खुद जॉब करती हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है इनफैक्ट स्टिल कि मैं अपने बेटे को दे सकूं. तो बहुत सबने बोला मुझे आप छोड़ दो, बट आई रियलाइज कि ना नहीं, आप सबसे जुड़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब एक वही तो है जिसमें मैं खुश रह सकती हूँ. करेक्ट. So वेरी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन पुष्पा, उसके लिए थैंक यू. अभी भी टाइम देती हूँ 1-2 घंटा ही, बट यस मस्ती करते हैं खूब मेरे बेटे के साथ. Everything will always boil down to your own feelings and your own understanding of your child. And honestly, आज एक माँ से बेटर अपने बच्चे को कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता. Exactly. अगर So once again, thank you, Kriti. Thank you so much. Thank you for the appreciation. Is anyone else who would want to ask, say, send us love on this Valentine's Day? I think everyone is like speechless in this, Kriti. बात करो यार, गप्पे मार रहे हैं हम लोग. Everyone is speechless because everybody is agreeing, everybody is happy to hear all this positive conversation, and feels good actually. So glad. I'm so glad that I'm here and conversing with all of you. कभी कभी मतलब ऐसे ऑनलाइन सेशंस में लगता है ना कि आप अकेले ही बैठ के बातें करे जा रहे हो, बोले जा रहे हो. Yes. So that's why it's a interactive. It's a good. उसमें लगता है. There's someone who's asked a question, pretty valid a question. Let me just take this question. Harshali, can we take this question? Which one, Kriti? How to keep motivated ourselves daily? Give some tips. Varsha. Okay, I missed it. Here. Yeah, please take it. Yeah. Varsha, can you unmute yourself? Can we see you? Is she there? Varsha P. No, no, she's not there. She's not in chat. No, she's not there. She'd asked a question, how can you keep yourself motivated daily? I think this is a very pertinent question. This is probably for everybody. आपका अपना मोटिवेशन आपको खुद देखना पड़ेगा. आपको खुद जानना पड़ेगा कि क्या करके दिन में, क्या सोच के दिन में आपको अच्छा लगता है. आप खुद को सबसे बेस्ट जानती हैं. तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि what actually brings a lot of joy in your life. अगर आपको डेली मोटिवेशन चाहिए तो सुबह सुबह उठ के रेडियो लगाइए, गाना सुनिए, काम करते करते, बच्चे के पीछे अगर काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, गाना सुनिए, कुछ पढ़ लीजिए, कुछ अच्छा खा लीजिए, ऑर्डर कर लीजिए. अब तो बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती. जोमेटो, स्विगी जिंदाबाद. कुछ ऑर्डर कर लीजिए.
वो सब छोटे छोटे काम करिए. मोटिवेशन ऑलवेज कम्स फ्रॉम एवरी क्वार्टर ऑफ लाइफ. वो सब छोटे छोटे काम करिए जो आपको करके अच्छा लगता है. आपको गुनगुना के अच्छा लगता है, आपको गाना सुन के अच्छा लगता है, कोई एक बहुत पुराना गाना है जो आपका बहुत फेवरेट है, या जब आप कॉलेज में थी किसी लड़के ने आपको कोई गाना डेडिकेट किया होगा, वो सुन लीजिए ना. दैट विल ब्रिंग स्माइल, दैट विल मेक यू स्माइल द एंटायर डे, क्योंकि आपको अपना वो टाइम याद आ जाएगा कि हाँ यार, एक ये लड़का था जिसने मुझे गाना बोला था, या मुझे गाना सुनाया था, उसने डेडिकेट किया था उसने. तो ये सब करिए. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वन कैन फील मोटिवेटेड विथ. धीरे धीरे करके ये सब करना शुरू करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. व्हाट इज मोटिवेशन एट द एंड ऑफ द डे? व्हाट डज मोटिवेशन मीन्स टू यू? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन? वही चीज है ना जो हमको अच्छा फील कराती है करके. आप अपनी जिंदगी जानती हैं, आप अपनी जिंदगी बेटर पहचानती हैं. मोटिवेशंस आप खुद ढूंढिए. किसी को कुछ पढ़ के अच्छा लगता है, किसी को कुछ करके अच्छा लगता है. अपना पुराना वो जीन्स निकालिए जिसमें आप अभी तक फिट नहीं आती हैं. आप उसको देखते ही आपको लगता है कि हे भगवान, इसमें तो मेरा एक पैर भी नहीं घुसेगा. निकालिए ना, वो भी मोटिवेशन है आपके लिए, क्योंकि उसको देख के आपको हंसी आएगी. उस जीन्स को निकाल के या उस कुर्ते को निकालिए ना जिसको देख के लगेगा कि ये राम, ये तो मैं कभी नहीं फिट आ सकती. तो ये सब छोटे छोटे काम करिए ना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत, सच में बहुत अच्छा लगेगा. खुद पे हंसने की कला बहुत ही सुंदर कला है. बहुत अच्छा लगेगा करके. सो इफ शी इज अराउंड एंड इफ दिस कैन हेल्प एनीबडी, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट. बहुत मजा आएगा करके. आई थिंक गीता वांट्स टू से Thanks. समथिंग. Yeah. क्या कृति, गीता, आपने जो कुछ किया, आपने जो कुछ भी Last. कहा, सही, बहुत ही सच है. आई एम वेरी थैंकफुल यार. आपसे बात कर, आपका बात सुन के मुझे सही में काफी एनर्जेटिक लग रहा है. I'm glad, Geeta. I'm so glad. I'm so glad. अच्छा कृति, मुझे एक चीज बताइए. Sure. अगर हाँ, अभी हम लोग तो अब सिर्फ मैं करके नहीं, सारे जो भी लेडीज है वो स्पेशल अपने बच्चे से तो रिलेट काफी अटैच तो रहते ही है, और हस्बैंड के साथ भी रहते हैं. जब उनसे सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम लोग टोटली टूट जाते हैं. क्योंकि जहां तक मेरी केस है, मुझे फैमिली में कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला. और मैंने जिसके और मैं इतने साल बच्चों के लिए मैं जीती रही. अब जाके मैं फैमिली को हस्बैंड को मैं ज्वाइन की हूँ. जब इतने सालों के गैप के बाद भी लगता है ना कि अरे, मतलब कोई तो कहना, मेरा सुनने के लिए कोई तो चाहिए, और हस्बैंड भी सुन नहीं रहा है, तो तब तो बहुत बुरा लगता है. तो ऐसे कंडीशन में कैसे अपने आप को ये करे यार? लगेगा ही बुरा. पता है क्या प्रॉब्लम है गीता? हम सबकी प्रॉब्लम है ये, हम सबकी प्रॉब्लम है. जैसे हम खुद को बता देते हैं ना कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है. द मोमेंट वी से दिस ना, द मोमेंट वी रियलाइज दिस, तो हमारे ना दिमाग में एक्सपेक्टेशन, ये बड़ी बुरी, मैं उसको बीमारी बोलूंगी, ठीक है? सही में ये बीमारी है. बीमारी है ये एक्सपेक्टेशन. खट खट दिमाग में 15 पॉइंट आ जाते हैं. अरे यार, तू तो मेरा पति है, तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए. और जैसे ही हमको दिखता है ना उस 15 पॉइंट में वो सिर्फ 2 कर रहा है और बाकी जो 13 है ना वो नहीं कर रहा, बस वहीं पे हमारा दिल जाता है टूट. गीता, द फर्स्ट थिंग, कोशिश करो, अगर कुछ भी एक्सपेक्टेशंस किसी से भी रखनी है, वो सिर्फ अपने से रखो. सिर्फ अपने से रखो. And this is extremely tough to do. This will not come to you overnight. This will not come to you overnight. वो भी एक्सपेक्ट करना है, खुद से करो. उसके बाद पता है क्या होगा गीता? आसपास जितनी भी आपको चीजें आपके लाइफ में होती हुई दिखेंगी ना, यू विल बी ग्रेटफुल फॉर इट. वो जो डिपेंडेंसी, ये जो चीजें सीख के हम बड़े होते हैं ना, ये हमारी कंडीशनिंग है. आपको पता है गीता? दिस इज ऑल आवर कंडीशनिंग. दिस इज हाउ वी हैव सीन आवर मॉम्स, दिस इज हाउ वी हैव सीन आवर फैमिलीज. कि we have always seen how our moms have been dependent to our dads. ये देख के हम बड़े होते हैं. फिर जब हमारी शादी लायक की एज हो जाती है,
ऐसे ही अजीब अजीब टाइप के सजेशंस हमको मिलने शुरू हो जाते हैं अपने बड़े बूढ़ों से। या तू कल ससुराल जाएगी, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। तो ये हमारी कंडीशनिंग है, हमेशा हमें ही कॉम्प्रोमाइज दिया कर। गया है, ये हमारे सिस्टम में डाल दिया गया है। अब उसको तो नहीं बदल सकते ना, बड़े बूढ़ों की सीख है ये, उसको तो हम नहीं बदल सकते ना। जो कुछ है हम अपना, हम हमारे हाथ में है ना, हम अपने आप को बदल सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। सो ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, उसको थोड़ा सा दबा। खुशी कुछ भी एक्सपेक्ट करना है ना, खुद से कर। मत कर एक्सपेक्ट कि समवन, व्हिच आई सेड, आई थिंक थोड़ी देर पहले, व्हिच आई सेड that don't make anybody a reason for your happiness. Don't reason for happiness. You should only be the reason for your own happiness and nothing else, nothing else. बाकी सब चीजें joy लाती हैं। आज डिक्शनरी खोलना, डिक्शनरी खोल के डिफरेंस देखना, डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड डिफरेंस बिटवीन जॉय। मैंने भी लाइफ में बहुत धक्के खा के सीखा है रे, बहुत धक्के खा के सीखा है। इतने एक्सपेक्टेशन सबसे होते थे ना, लेफ्ट राइट सेंटर दिल टूटता था। बैठ के रोती रहती थी, पै 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 करती रहती थी। किसी एक दोस्त को फोन करके, यार देख उसने ऐसे बोल दिया, मैं तो उसके लिए इतना करती हूँ, वो मेरे लिए कुछ नहीं करता। ये गीता, आई एम टेलिंग यू, मैंने अपने साथ इतना कर लिया है ना, एंड दिस इज माय रियलाइजेशन। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कृति कि मैं इतने साल हस्बैंड से दूर रह के मैंने सिर्फ बच्चों के बारे में सोचा, तो क्या मैंने गलती किया क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं गीता। तूने वही किया जो तेरा मन किया करने का, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी बेटी थी। बट गीता इतना याद रख, एट द एंड ऑफ इट तुमने ये जो सब कुछ किया वो क्यों किया गीता? Can you ask this question to yourself and honestly answer देगी खुद को? Honestly answer देगी? Just ask this question to yourself कि मैंने ये जो कितना कुछ हस्बैंड से दूर रह के अपने बच्चों का ध्यान रखा, ये मैंने क्यों किया? क्यों किया गीता? Be very very honest to yourself. Be very honest to your own self. मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं है गीता। Be very honest to yourself कि ये काम तूने किया। कब आएंगे? मैं पता है क्यों करती ये काम गीता? Tell me, you can relate to it. मैं ये काम इसलिए करती जिससे मेरा हस्बैंड खड़ा होकर मुझे 4 ताली मार के बोले, वाह व्हाट एन अमेजिंग वाइफ आई हैव। कब आएंगे? कब आएंगे? Trust me गीता, आई एम टेलिंग दिस टू यू माई सेल्फ। अपने आप को कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करते रहो। हम जो भी कर रहे हैं आज अपनी लाइफ में, वो हम एक्सटर्नल वैलिडेशंस के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं? पर हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है ना, हम ये सब देख के ऐसे बड़े ही हुए हैं ना कि हमको 4 ताली चाहिए होती है 5 लोगों के बीच में खड़े होके, वाह व्हाट एन अमेजिंग वाइफ आई हैव, वाह व्हाट एन अमेजिंग मॉम आई हैव, वाह व्हाट एन अमेजिंग डॉटर इन लॉ आई हैव। नहीं चाहिए रे ये सब, नहीं चाहिए ये सब, नहीं चाहिए। भूल जा, ये क्वेश्चन ही दिमाग से निकाल दे गीता, क्योंकि जितना ये सोचती रहेगी ना, उतना ये तेरे अंदर जितना भी तेरा, जिसको मैं कहती हूँ ना योर ओन स्पिरिट, वो तेरे स्पिरिट को रहेगा। स्टॉप इवन लुकिंग फॉर एन आंसर। जो करने के खुले मन से कर, खुश होके कर। अपने बच्चे हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, आगे भी रखना है, जो भी करना है। वैलिडेशंस ढूंढने मत जा कि आज मेरा पति आके ताली बजा के बोलेगा, वाओ गीता वेल डन, आई लव यू, यू आर द वाइफ बन के। Start saying this to your own self कि मैं अमेजिंग हूँ यार, मैं ऑसम हूँ। Have you seen my tagline? ऑसम बोलती हूँ। दुनिया के बारे में I feel awesome यार, मैं ऑसम हूँ यार। I'm an awesome naughty mom. I'll stay an awesome naughty mom. सही है। खुद को बोलना मैं ऑसम हूँ, मैं अमेजिंग हूँ। कोई माने या ना माने। कंगना रनौत को देखा है? पत्ती करती रहती है। तो दुनिया पता कितना बोलती है, कितना गाली सुनती है, पर शी इज ऑसम। बन जाओ, ऑसम है, सब ऑसम है, नहीं चाहिए किसी का। और गीता सुन, अगर तेरे को अप्रिसिएशन कोई देगा ना, तो दिल से देगा, अपने आप देगा, ढूंढने मत निकल अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन के लिए जब हम हंग्री हो जाते हैं ना, तो हमारा डेस्परेशन दिखने लगता है रे।
And people Yeah, take right. advantage of that desperation. Yeah. मौसम है मस्त है एकदम मस्त है. Everybody is awesome. Everybody is amazing. Everybody is beautiful. तो 5 लोग फेसबुक पोस्ट में लिखेंगे यू लुकिंग ब्यूटीफुल. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. आई नो इट्स ओके. हस्बैंड ने बोला नहीं बोला, उसने फील किया नहीं किया, दैट्स हाउ ही इज. बट व्हाई शुड यू चेंज योर ओन सेल्फ बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर? मुझे खुद को भी लग रहा है कि शायद मैं एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख रही हूँ. एग्जैक्टली. हाँ. इतना वो मत कर यार कि एक्सपेक्टेशन ठीक है इंसान हो, एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं, जरूर होंगे एक्सपेक्टेशंस. रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो कि हाँ वो मुझे पानी पूरी खिलाएगा, वाओ क्लैपिंग. रियलिस्टिक वाले रखो ना. हाँ. मैसेज करेगा हैप्पी बर्थडे या मेरे बर्थडे पे दो ठो फूल दे देगा. रियलिस्टिक वाले रखो ना. Venu ji, I know, just saw your chat here. हाँ थोड़ी सी हो गई हूँ, उम्र हो रही है ना इसलिए. इसीलिए हो रही हूँ. Spiritual, yes. हाय वेणु जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, तुम सुनाओ. बहुत अच्छा तुम्हारा आज का वेबिनार है. थैंक यू. हम इतने सीनियर हो चुके हैं, इसके बावजूद भी वी लर्न फ्रॉम यू. अरे वी ऑल आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर वेणु जी. वी and this is a beautiful process. We'll keep learning from each other. उसमें तो मजा आता है. Thank you for your this webinar was very amazing and बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू वेणु जी, थैंक यू. बहुत अच्छा लगता है आप ऐसे जब ब्लेसिंग्स देती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. Thank you Venu ji, and thank you everyone. I mean सबको इतना हेल्पफुल लग रहा है कृति, और सच में it was very emotional and motivating session both. I'm sure. मैंने चैट में ग्रुप का लिंक पोस्ट कर दिया है स्पेशल मॉम के, वांट्स टू जॉइन इन, और यू कैन कांटेक्ट मी, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी. हर्षाली कैन हेल्प बिकॉज हर्षाली मेरे काफी सारे हमारे स्पेशल मॉम ग्रुप्स की एडमिन है, सो इवन हर्षाली कैन वन चैंपियन ऑफ स्पेशल मॉम, सो आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ चैंपियन ऑफ पुष्पा एंड हर्षाली. दे बोथ आर पेरेंट चैंपियंस ऑफ द स्पेशल मॉम, सो आप लोग उनसे बात कर सकते हैं. दे विल ऑलवेज हेल्प यू. Yes. So thank you so much Kriti, and thank you all of you. You took out time on Sunday morning, and thank you Kriti in busy scheduling. Managed this one since long time I was thinking. Thank you so much. हर्षाली, हाँ, थैंक यू बिकॉज कृति को सुनाने के लिए. मोस्ट वेलकम पुष्पा. कृति को सुनना अपने आप में बहुत बड़ा प्लेजर है यार. पुष्पा सीरियसली यार, सीरियसली मतलब यू आर अमेजिंग. Thank you. We all are amazing. Remember, we all are awesome. We all are amazing. Yes. Okay, have a great day everyone. Have a great day. Charlie, thank you. Snake, lovely experience. प्यार के दिन में इतनी सारी बातें करना काफी अच्छा लगा आप सबके साथ, और हमारे ग्रुप के बारे में भी बहुत सारी बातें हो गई है. हर्षाली कैन हेल्प, पुष्पा कैन हेल्प, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं स्पेशल मॉम के साथ. एंड आई विल एंड दिस. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना ध्यान रखिए. आपके बच्चों को खूब सारा प्यार. थैंक यू सो मच हर्षाली. थैंक यू. Thank you. Have a great day. Bye-bye.